Sir Vineet Sharma, the Director of Team 360. Sir Vipul Sharma, Director, Team 360. Sir Rajesh Singh, Team Member. Sir Harinath Tati, Coordinator of Assam. Dear 360 members, team here, dear teachers and dear parents. This morning I am here just to introduce our team members. These days, or even from the beginning, from the month of May, we are starting fingerprints, and so there are so many queries regarding this. What is this? Why the fingerprints are being taken? So they are all the way from Jaipur, they are here to tell us why it is taken and what we are doing. And so I'm happy that some of the parents are here to listen to them so that we appreciate what is happening to our students or to us. Thank you very much, dear parents, for being here, taking your time in spite of having PTM. And I hand over the mic to our teacher. A very warm good morning to our respected Principal Ma'am, Sister Rose Fatima, Team 360 Rich Analysis, and all our beloved parents. We have gathered here to delve into the intricacies of the event Rich Analysis to be a stimulating intellectual experience where we will gather groundbreaking ideas and innovative solutions. The highlight of today's seminar is the insightful keynote address by our distinguished guest speaker and his team from Rich Analysis. Without further ado, let us extend a warm welcome to our esteemed speaker. As we have already gone through the notice that was sent yesterday by a school, and we know why we have gathered here today. So we are confident that this seminar will be a catalyst for intellectual growth and inspire innovative thinking. So let us make the most of this opportunity to learn, engage and network. And now I would like to hand over the mic to Sir Harinath Tati, the coordinator of Assam. Respected principal of this school and the teachers and the director Vineet Sharma and Vipul Sharma of Team 360. Today we are here to discuss about Rich Analysis, which has been started here in your school. So first of all, I would like to thank our principal that she has provided such type of opportunity that you are getting over here. So once again I would like to thank Principal Madam and the teachers. And now I would like to request Mr. Vipul Sharma, the director of Team 360, to keep some words in front of you. Thank you. First of all, we are very grateful for school management, especially Principal Ma'am, Sister Rose, and all the people who have given chance to speak in front of you all, and we are very grateful for you people, because you all are available here in order to listen me, because if you were not there, whom would we have discussed our concept? So we are very grateful, and we'll start the session with my introduction. See, as far as my profession is concerned, see, I am Vipul Sharma, and I'm a corporate trainer of New Mindset from Netherlands-based organization Golden Inspiration. Apart from this, I'm a nutritionist
and there is a subject called quantum physics which is used in NASA. I deliver lecture on that subject, especially for those people who got selected in civil services. But gradually we realized that we were delivering lecture for those who were already settled in terms of money and career. So to keep this thing in our mind, we started doing something new and introduced few product in India, especially risk analysis, pineal gland activation, brain engineering, so many courses we have introduced. So we would start with risk analysis because already it has happened here. So many parents are here. So I would start with one thing, that how many of you, those who are sitting here and those who are sitting here have an idea about risk analysis. Is there anything that is happening here? किसी को पता है रिस्क एनालिसिस के बारे में, नाम सुना है कि कुछ हो रहा है यहाँ पे? It just raise your hand if someone is having idea about this. Nobody is having idea? Definitely. We know that. So we'll start the session. It's very unique session and it would be so interesting for you people, because as far as my profession is concerned, I was invited to deliver lecture in 2012. अच्छा, let me know what should be the medium? It should be Hindi, English और bilingual. भाषा कौन सी रहनी चाहिए? हिंदी, इंग्लिश और bilingual दोनों? Bilingual? हिंदी चलेगा, इंग्लिश चलेगा, दोनों चलेगा? All right. अच्छा देखिए, सी वी आर फ्रॉम जयपुर राजस्थान. कोई और भी है क्या यहाँ राजस्थान से? 1 2 3 4 5. क्या हमने सुना मारवाड़ी बहुत है आसाम के अंदर. व्हेन वी केम हियर वी गॉट अरे वेरी गुड, लास्ट तक दिख रहा है वो एक छोटा सा हाथ. ओके, सो मोर और लेस ऐसा जिस प्रोग्राम के बारे में आज आपसे बात कर रहे हैं ना, बहुत यूनिक प्रोग्राम है. 2012 में मुझे दूरदर्शन पे लेक्चर के लिए बुलाया गया था. डीडी नेशनल गवर्नमेंट का चैनल है और आप चाहे तो नेट पे सर्च कर लीजिएगा, विपुल शर्मा टीम 360, विनीत शर्मा टीम 360, उस पर आपको डिटेल मिल जाएगा दूरदर्शन का, गवर्नमेंट का. एंड सब्जेक्ट वाज वेरी सिंपल टू मोटिवेट दोज हु वर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. आईआईटी की ओके सर, व्हाट डू यू फील? आपको क्या लगता है कौन सा वाला ब्रेन ज़्यादा वर्क कर रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? Left. हाउ डू यू नो? It is very good for children to. नहीं वो तो ठीक है, मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि आपको कैसे पता कि आपका लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा चल रहा है या राइट वाला? आइडिया नहीं है. Left ज़्यादा चल रहा है. हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता? I don't know. यू हैव नो आइडिया. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, प्लीज सर से पूछते ना, आपको क्या लगता है सर कौन सा ब्रेन ज़्यादा चल रहा है? Exactly पता नहीं चलता. एग्जैक्टली पता नहीं चलता. चलो मैम से पूछ लेते हैं, मैम क्या लगता है कौन सा वाला पार्ट ब्रेन ज़्यादा वर्क कर रहा है? नहीं आइडिया. सर तो पक्का बताएंगे. हमें ये सब तो ज्योतिष पता नहीं है. हाँ ये सब तो पता नहीं. चलो ये भाई तो पक्का बताएंगे. इन विच स्टैंडर्ड यू आर? कौन सी क्लास में हो? मैं 9th. अरे 9th वाला. 9th में तो बायो में था लेफ्ट राइट सब. कौन सा वाला पार्ट वर्क कर रहा है? मेरा लेफ्ट ज़्यादा कर रहे थे. आपको क्या पता? मेरा राइट डोमिनेंट है ज़्यादा, नहीं वो आपको कैसे पता? क्योंकि हम फिजिकली राइट साइड में ज़्यादा एक्टिव है, तो आई एम मोर डोमिनेंट. सो ये तो आपने आइडिया लिया है बिकॉज आई एम डोमिनेटिंग बाय दैट थिंग. मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपने घुस के देखा था क्या? आपको कैसे पता? दिस इज अ चैलेंज. यही चीज़ मैं, खैर मैं तो सभी पेरेंट्स से बात करूँगा. जैसे हम लोगों को किसी को खांसी का प्रॉब्लम हो गया तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक्सरे करके बता देते हैं कि हाल फिलहाल ये स्थिति है भैया, आपके बच्चे का ये मामला है, यहाँ पे वीक है, यहाँ पे स्ट्रांग है. बट ऐसा कोई सिस्टम अभी तक आया ही नहीं. इसकी वजह से ही पढ़ाई के अंदर सारा चैलेंज आता है और यही कारण है कि बाहर के देश हमसे इतना आगे चले गए. क्यों? क्योंकि मैं एग्जाम्पल ऐसा भी नहीं है कि मैं ये इस पर बात कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के पॉइंट से बता देता हूँ. रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री हु स्टार्टेड यूजिंग दिस कंसेप्ट. 1972 में रूस ने, अब तो 18 टुकड़े हो गए, रशिया ने फिंगरप्रिंट टेस्ट किया इस तरह का और ये बायोलॉजिकल ग्राउंड पे अवेलेबल है, नेट के ऊपर अवेलेबल है. उन्होंने केवल वही बच्चे सेलेक्ट किए जिनका ब्रेन स्पोर्ट्स के लिए बना है. वैसे भी कम्युनिस्ट है, वो कुछ भी डेट बाहर आने नहीं देते हैं. उन लोगों ने केवल वही बच्चे सेलेक्ट किए जिनका ब्रेन स्पोर्ट्स के लिए बना है. एंड द रिजल्ट इज 76 के ओलंपिक में और 72 के ओलंपिक में रशिया के कितना अंतर आया? 72 के ओलंपिक में 50 मेडल जीते थे और 76 के मेडल ये सिस्टम यूज करने के बाद 125 मेडल जीते. इंडिया मुश्किल से एक जीतता है, वो 125 जीते. कि अगर आप ऐसे हाथ रखते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपके ब्रेन के कौन से हिस्से में न्यूरॉन्स ज़्यादा हैं और कौन से हिस्से में न्यूरॉन्स कम है. उसको इसके बेसिस पे ब्रेन को काउंट किया जा सकता है. ऐसे तो आप लाइन देखोगे तो आधार कार्ड पे अंगूठा लगाओगे तो बहुत सारी रेजेस दिखेगी. ये जो रेजेस है इनको काउंट किया जा सकता है मैथमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू. पर ये इतना कठिन था कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया. बोला यार ये तो
रात की रेजेस गिरना, आसमान के तारे गिरना एक ही बात है, इतना कौन गिन सकता है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन्होंने इसके बेसिस पे ब्रेन की स्ट्रेंथ को बायोलॉजिकली गिन लिया था, साइंटिफिकली प्रूवन है। फिर थर्ड नंबर पे एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा ये तो दोनों लफड़े वाला मेहनत का काम है, हटाओ, एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है बच्चे के ब्रेन को पूरा जज करते हैं, और वो लेफ्ट और राइट ब्रेन की थ्योरी लाए, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला है डॉक्टर रोजर एस्पियरे को, कि जिनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा चल रहा है वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस पढ़ाई के थ्रू करियर बनाते हैं, जिनका राइट ब्रेन ज्यादा चल रहा है वो म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स, इन लाइन्स में जाते हैं। बट अपकमिंग साइंटिस्ट वर वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने क्या किया, इन तीनों थ्योरी को क्लब किया और ये टेस्ट तैयार किया जिसका नाम रिज एनालिसिस रखा, कि बच्चे के हाथ के रिजेस को काउंट करके ब्रेन को रीड किया जा सकता है। तो ब्रेन को रीड नहीं कर रहे हैं, क्या रीड कर रहे हैं कि ब्रेन के किस हिस्से में न्यूरॉन्स ज्यादा है उसको रीड कर रहे हैं। तो यहाँ इसीलिए तो हम लोग आए हैं ताकि हम चीज बेटर समझा सकें, कि जैसे अभी आपका फ्रंटल लोब है, इसमें ज्यादा न्यूरॉन्स है। अच्छा, पूरे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, 1200 करोड़ न्यूरॉन्स है, ठीक है ना। तो जिस हिस्से में न्यूरॉन्स ज्यादा है ना, हम इस टेस्ट के थ्रू ये बताते हैं कि भैया आपके बच्चे का ए ब्रेन में स्ट्रांग है, इस पार्ट में न्यूरॉन्स ज्यादा है, इस पार्ट में न्यूरॉन्स कम है। तो जिसमें न्यूरॉन्स कम है ना, हम उसको शार्पन करते हैं, लेकिन उसमें करियर बनाने को कभी नहीं कहते हैं। ये जो चीज आपने पूछी ना, बिल्कुल सही कही, बहुत अच्छा किया, लेकिन सर चैलेंज ही तो यही है। आप तो पेरेंट रिलेट करेंगे, अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं थोड़ा सा हार्श हूं। तो देखिए, आप और हमारी एज ऑलमोस्ट सेम है। आपके हमारे टाइम में 70% भी बहुत अच्छा होता था, ठीक है ना, मेरिट की इज्जत हो जाती थी, और आप तो मेरे से भी ज़्यादा मैच्योर हैं, तो 60% पे ही चल लेता हूँ, फर्स्ट डिवीजन बन जाए बड़ी बात होती थी। फिर टाइम बदला, 70-60 वाला खिसक के 80-90 तक आ गया, कि भैया 80-90 तक भी चल रहा है, लेकिन उसमें एक चेंज है। पहले 60% आता था, फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी साइंस दिलाना है, इंटरेस्ट है कि चाहिए नहीं है, साइंस दिलाना है ताकि डॉक्टर इंजीनियर बना जाए। सेकंड प्रायोरिटी रहती थी कॉमर्स दिलाना, और किसी काम का नहीं है ना तो उसको आर्ट्स दिलाया जाता था, ठीक है ना। और लेडीज के लिए था कि शादी करना है आर्ट्स दिलाओ। मैं बहुत प्रैक्टिकल और हार्श हो सकता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है, इस तरह से चला। बाद में 3 इडियट टाइप मूवी आया चीजें बदल गई, बच्चों का इंटरेस्ट के बेसिस पे करियर बनने लगा। बट द प्रॉब्लम इज 90% students are getting 95, they are getting out of 100 and they are not able to speak English. Even उनसे पहाड़े बोलो तो पहाड़े भी नहीं बोल पाते हैं, पता नहीं कौन सा नंबर मार्क्स लेके आते हैं वो, बट वो परफॉर्मेंस ही नहीं है जो आप और हम लाया करते थे। बट द प्रॉब्लम इज, मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, मैं सर ने क्वेश्चन पूछा उसके पॉइंट से ही कह रहा हूँ। मान लीजिए सर, आप ही से बात हुआ तो पूछ भी लेता हूँ, मान लो एक बच्चा है जिसका ब्रेन, रिपोर्ट से पता चलता है कि उसका ब्रेन पॉलिटिक्स के लिए बना है, ठीक है, लेकिन चूंकि उसके नंबर बहुत अच्छे आ गए, या यूं कर लेता हूं, दोनों तरह से दोनों एग्जांपल दे दूंगा, 70-80% स्कोर कर लिया या 90% स्कोर कर लिया, जस्ट बिकॉज वी आर गेटिंग 100 आउट ऑफ 100। आजकल तो नंबर लुटाने की प्रथा है, तो खूब नंबर आते हैं बच्चों के। अब समवन इज गेटिंग 100 आउट ऑफ 100 और ब्रेन उसका उस लाइन के लिए बना नहीं है, बना तो स्पोर्ट्स के लिए या पॉलिटिक्स के लिए। अब प्रॉब्लम ये है क्योंकि 90 नंबर आ गए, पापा मैं तो इंजीनियरिंग करूंगा, जस्ट बिकॉज दे आर गेटिंग 100 आउट ऑफ 100, तो भैया जहाँ कोटा तैयारी कर। अब वो वहाँ तैयारी करने जाता है जहाँ उसकी मुलाकात उन लोगों से होती है जिनका ब्रेन एक्चुअली साइंस के लिए बना है, इंजीनियरिंग के लिए बना है। वहाँ जाके कंपीट करता है, गाड़ी नहीं चल पाती है। क्यों नहीं चल पाती है? क्योंकि ब्रेन तो बना ही नहीं था, नंबर लुटाने की प्रथा है, बहुत सारे नंबर लिया है, और आजकल बच्चे हर सब्जेक्ट में पूरे नंबर ले आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जब बच्चा वहां जाता है ना तो रियल लाइफ फेस करने को मिलता है, एक्चुअल के अंदर जो रामानुजम है ना वो वहां मिलते हैं, फिर वहां सिलेक्शन नहीं होता है, तो बच्चे के पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो स्ट्रेस में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, दूसरा है खूब सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है तो कहीं भी एडमिशन तो हो जाएगा, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन एवरेज इंजीनियर बन के रह जाएगा, टॉप क्लास का नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उस लाइन के लिए तो उसका ब्रेन बना ही नहीं था। हाँ, जिस भी दिन मौका मिलेगा ना, किसी इंजीनियरिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा, करेगा पॉलिटिक्स ही। तो हम कहते हैं रे, जब आपको इसी लाइन में जाना है तो कान ऐसे पकड़ने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ऐसे पकड़ लो। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप अकेले नहीं हो सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इवन। As we conclude this enlightening and enriching seminar on rich analysis, I, on behalf of Kamal School, Jorhat, would like to express our sincere gratitude to each and everyone who was present here. First and foremost, I would like to extend our heartfelt thanks to our esteemed principal, Sister Rose Fatima, for her visionary leadership. Her guidance has been instrumental in shaping this institution and providing us opportunities like this. We are deeply indebted to our dedicated team of 360 Rich Analysis for a seamless execution of this seminar. A special word of thanks to our esteemed resource person, directors of Team 360 for sharing their valuable insights and expertise with us. Your enlightening session and has broadened our horizons and ignited our minds, inspiring us to reach new heights.
We would also like to acknowledge the invaluable support of our parents and guardians. Your presence and encouragement have created a positive and supportive environment for all of us present here today. Last but not the least, I would like to express our gratitude to our technical team and support staff for their efficient handling of the technical aspects of this event. Your efforts have made significant contribution to the smooth running of the seminar. We hope that the knowledge and inspiration gained today will continue to fuel our journey of learning and growth. Let us carry forward the spirit of learning and exploration, and thank you a lot.